A very good morning to all my dear students. I hope you have done your previous exercise 1.2 in your notebook that we have discussed yesterday. And today we are going to start our exercise 1.3. Okay. So the first question is compare the following numbers using greater than sign, less than sign or equal to sign. Means two numbers are given and you need to find which one is greater or smaller or if both are equal or not. So let us start with the first question, that is A. This one, the first number that is given on the left hand side is 1,47,913 and on the right hand side the number is given 4,12,817. So there are two rules to compare the numbers. First of all, the numbers which is given at the left hand side and the right hand side, you need to first count the number of digits in both the numbers. In this number there are 6 digits and in this number there are also 6 digits. When the digits in the numbers are same, then you need to compare the number one by one in the digit that is given in the number. अब दोनों नंबर में इसमें भी 6 डिजिट है और इसमें भी 6 डिजिट है, मीन्स दोनों ही नंबर बराबर हैं. अब हमें वन बाय वन नंबर कंपेयर करना होगा चेक करने के लिए कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है. ओके, सी इन दिस नंबर द फर्स्ट नंबर इज 1 एंड इन दिस नंबर द फर्स्ट नंबर इज 4. सो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है दैट दिस 4 इज ग्रेटर देन दिस 1. सो our answer is this number will be greater. So I have put greater sign on this side number. Okay, now see the B part. Again two numbers are given here. On the left hand side there is a number which is having 6 digit and on the right hand side here is also number given which is having 6 digits. Again in both the numbers between this one and this one, both are having the 6 digits. So again we will compare one by one with the digit. Now see here, in this the first number is 2 and in this number is also first digit is 2. अब दोनों में 2 और 2 फर्स्ट दोनों बराबर हैं. नाउ जब हमारे दोनों नंबर बराबर होंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर कंपेयर करना होगा. हियर द नेक्स्ट नंबर इज 1 एंड हियर द नेक्स्ट नंबर इज 1. अगेन दोनों नंबर 1 1 बराबर है. फिर हमें थर्ड नंबर कंपेयर करना होगा. हियर द थर्ड नंबर इज 7 एंड हियर द थर्ड नंबर इज 4. सो वी कैन क्लियरली सी दैट दिस 7 number is greater than this 4 number. So without comparing the remaining digits we can simply say this number is greater than this number. So the answer will be this side, greater hand side. Okay, now see the question number 2. Arrange the following numbers in ascending order and descending both. In your book the question was, both the questions are different. In first question number 2 we need to arrange in descending order and in question number 3 we need to arrange in ascending order. But in this question I have given an example and with that example मैंने दोनों ही ascending और descending इसी क्वेश्चन में आपको समझाए हैं. अब see, now the rule for arranging the number in descending order or ascending order is, see first मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लगा रहा हूँ. अब उसके लिए क्या कंडीशन है, तो हमारे पास जितने भी नंबर दे रखे हैं ऑल दीज नंबर, पहले तो हमें उसमें डिजिट्स काउंट करने पड़ेंगे कि सारे नंबर्स में डिजिट्स कितने हैं. अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो चारों नंबर हैं सब में 6 डिजिट हैं, मीन्स सारे नंबर बराबर हैं, डिजिट्स में बराबर हैं. तो जब नंबर सारे बराबर होते हैं फिर हम क्या करते हैं, एक एक करके नंबर कंपेयर करते हैं. अब हमें सबके फर्स्ट नंबर देखने होंगे. हियर द फर्स्ट नंबर इज़ 2, हियर फर्स्ट नंबर इज़ 5, हियर 7 एंड हियर 4. अब क्योंकि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, द बिगेस्ट नंबर विल बी द फर्स्ट नंबर, वो पहले लिखा जाएगा एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी द लास्ट, मीन्स बड़े से छोटा.
सो अगर हम सबके फर्स्ट लेटर देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। सो अगर 7 बड़ा है तो ये 7,80,412 ये हम पहले लिखेंगे बिकॉज दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ 7 के बाद कौन सा नंबर फिर पड़ा है? 5। सो 5,87,613 हम लिखेंगे। अब 7 हो गया हमारा, 5 हो गया हमारा, अब बचा है दिस नंबर एंड दिस नंबर। अब दोनों के अगर फर्स्ट नंबर हम कंपेयर करेंगे सो 4 इज ग्रेटर देन दिस 2 अगेन। सो वी विल राइट 4,12,815 और फिर हमारा जो लास्ट नंबर बचता है दैट इज 2,17,804। दिस विल बी आर स्मॉलेस्ट नंबर। सो लाइक दिस वी हैव अरेंज फ्रॉम biggest number to smallest number in descending order. Okay, and now what is ascending order? Ascending order is just opposite of descending order. Descending order में हम लोगों ने बड़े से छोटे नंबर को अरेंज किया था और ascending order में हम छोटे नंबर हम पहले रखते हैं और बड़ा नंबर हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। इन सिंपल वे अगर हमें किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो सो वी विल राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट। अब इन चारों नंबर्स में दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, इन ऑल दीज 4 नंबर्स सबकी फर्स्ट डिजिट हम कंपेयर करेंगे और सारे के फर्स्ट डिजिट में सबसे छोटा डिजिट है हमारा 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7। सो लाइक दिस द फर्स्ट नंबर विल बी 2,17,804, this is the smallest number, then 4,12,815, then 5,87,613 और फिर 7,80,412। So like in this way we have arranged the number from smallest to biggest, that is ascending order. Okay, I hope you all got this question number 1 and question number 2. Now let us move to our third question, that is form the greatest and the smallest number from the given digits using only ones. इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में हमारे जो नंबर्स दे रखे हैं, जो डिजिट्स दे रखे हैं, उनको हमें एक ही बार यूज़ करना है और उससे एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। हम ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं? इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। जो भी क्वेश्चन में अगर नंबर में अगर डिजिट्स दे रखे हैं तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें उन सारे नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। मीन्स सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर एट द लास्ट स्मॉलेस्ट नंबर। सो इन सारे नंबर्स में सबसे बड़ा 8 है, सो आई हैव रिटन हियर 8। फिर उसके बाद 7 है, फिर आई हैव रिटन हियर 7। देन उसके बाद 4 है, देन 4। सिमिलरली लाइक दिस, ऐसे करते करते टिल 1 आई हैव रिटन हियर। मीन्स फ्रॉम बिगेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर आई हैव अरेंज्ड हियर एंड वी गेट आवर ग्रेटेस्ट नंबर, that is 8,74,321. Okay, and if we need to find the to form the smallest number, हम क्या करेंगे? जो ग्रेटेस्ट नंबर हमने बनाया है उसका जस्ट अपोजिट हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। ठीक है, सो हियर द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, देन 2, देन 3, देन 4, then 7 and then 8. So in this way I have arranged all the numbers and we get the smallest number without repeating the digits. अब ये तो रहा क्वेश्चन जिसमें हमारे ज़ीरो नहीं था, सारे नंबर्स हमारे थे एक्सेप्ट ज़ीरो, तो हमने उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने में। अब नाउ सी द एग्जाम्पल बी। अब इसमें क्या है, हमारे पास है एक ज़ीरो। नाउ इफ़ देयर इज़ नंबर ज़ीरो, सो उसके लिए आपको ये देखना होगा, ग्रेटेस्ट नंबर तो सिंपल है बनाना। फॉर ग्रेटेस्ट नंबर अगेन यू विल राइट द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। सो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8, फिर 7, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 0। एंड इन दिस वे आई हैव रिटन ऑल द नंबर्स एंड वी गेट द ग्रेटेस्ट नंबर।
एंड फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली क्या बात आती है, अगर हमारे क्वेश्चन में ज़ीरो है और हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हम सबसे पहले ज़ीरो नहीं लिखेंगे, डेट विल बी रॉन्ग। हम ज़ीरो के अलावा जो ज़ीरो से बड़ा जो नंबर है वो देखेंगे। तो ज़ीरो से बड़ा यहाँ पर 2 है, तो हम पहले 2 को लिखेंगे, ना कि ज़ीरो को। ठीक है, पहले हम 2 लिखेंगे यहाँ पर, और सेकंड प्लेस जो है हमारी वो ज़ीरो के लिए फिक्स हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑलवेज इफ़ वी फॉर्म द नंबर स्मॉलेस्ट नंबर एंड इफ़ देयर इज़ ज़ीरो इन डिजिट इन द नंबर, सो ज़ीरो विल ऑलवेज कम ऑन द सेकंड प्लेस। और फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा, ज़ीरो से जो बड़ा नंबर होगा। अब क्योंकि हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, सो यू विल राइट द रिमेनिंग डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर 7, फिर 8, एंड यू विल गेट द आंसर एज 2,03,478. So this is all for today. Question number 1, 2 and 3. You will note down all these 3 questions in your notebook, and don't forget to write the revision on the top, exercise 1.3 and the date. Okay, thank you class, and thanks for watching my video. Have a good day.